یہ امरूद تو میرا ہے، تم اسے کیوں کھا رہے ہو؟ تمہارا کیسے ہو گیا؟ جب میں اس امرود کے پیڑ پر آیا تھا تو یہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور ویسے بھی جنگل کے سب پیڑوں پر سب پکشیوں کا برابر کا حق ہے۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم جگو کے سامنے اپنی زبان چلاؤ؟ میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، یہ امرود میرا ہے، چلو بھاگو یہاں سے۔ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ چھوٹے مٹھو کے ایسے کہنے پر جگو کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اور وہ اس چھوٹے سے مٹھو کو 3-4 چونچے مار دیتا ہے، جس سے وہ چھوٹا مٹھو گھائل ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگ جاتا ہے۔ میں ابھی اپنے پاپا کو بتاتا ہوں تمہارا۔ اور مٹھو روتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے، اور جگو من ہی من میں بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے مٹھو کو بھگا دیا اور خود اس کا امرود مزے لے لے کر کھا لیتا ہے۔ جگو بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا، اور یہ سب اس کی ماں کے بیجا لاڈ اور پیار سے ہوا تھا۔ وہ آئے روز کسی نہ کسی چھوٹے پکشی کو مارتا رہتا تھا۔ آج بھی اس نے مٹھو کو بغیر وجہ کے مارا تھا۔ پاپا پاپا، جگو نے مجھے مارا ہے، وہ امرود میرا تھا، میں نے ہی اسے ڈھونڈا تھا، جگو نے مجھ سے میرا امرود بھی چھین لیا اور مجھے مارا بھی ہے۔ چھوٹے مٹھو، تمہارا پاپا ابھی جا کر بتا کر آتا ہے اس کے مما پاپا کو۔ بیٹا، یہاں پر جگو ہو، تم وہاں سے ترنت آ جایا کرو۔ یہ کالو اور گوری کو اپنے بیٹے کی ایسی حرکتیں پتہ نہیں کیوں نہیں نظر آتی۔ بیٹا تم چپ کر جاؤ، میں ابھی جاتا ہوں اس کے گھر۔ اور پھر مٹھو طوطا جگو کے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ کالو، میں تمہیں شکایت لگانے نہیں آیا، کیونکہ بچے سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تم جگو کو تھوڑا سمجھاؤ کہ مار کٹائی والے کام نہ کیا کرے۔ کیا کر دیا میرے جگو نے جو شکایت لے کر آگے؟ گوری بہن، وہ میرے بیٹے کو چونچے مار مار کر جگو نے گھائل کر دیا ہے۔ ضرور تمہارے بیٹے کا ہی قصور ہوگا، میرا بیٹا تو بہت سمجھدار ہے، وہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا۔ اور پھر جگو بھی آ جاتا ہے۔ جگو میرے چندا، تم بتاؤ کیا کہا تھا تمہیں اس کے بیٹے نے؟ مما، وہ مجھ سے امرود چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے مجھے غصہ آ گیا تو میں نے تھوڑی سی پٹائی کر دی۔ دیکھا، میں نے نہیں کہا تھا کہ میرا جگو بغیر وجہ کے کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ اب جاؤ اور جا کر اپنا کام کرو۔ گوری، ہمیں بچے کی ہر بات پر وشواس نہیں کرنا چاہیے، اس طرح یہ تمہیں کبھی کسی بڑی مصیبت میں ڈال دے گا۔ مصیبت میں ہمیں ڈالے گا، تمہیں نہیں جو اتنی ٹین ٹین کر رہے ہو۔ تم سب جلتے ہو میرے جگو سے۔ طوطا گوری کی باتیں سن کر حیران رہ جاتا ہے، اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گوری، ویسے تمہیں جگو کی اتنی پکشپات نہیں کرنی چاہیے۔ اب تم نہ شروع ہو جانا، میرا بیٹا تو ہیرو ہے اس جنگل کا، بس یہی بات ان پکشیوں سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے آئے روز بہانے بنا کر آتے رہتے ہیں۔ اور پھر کالو کوا بھی خاموش ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے ہی رات ہو جاتی ہے، اور وہ سب سو جاتے ہیں، جبکہ جگو جاگ رہا تھا، اور اس کا من کر رہا تھا کہ وہ کوئی شرارت کرے، اور وہ کچھ سوچ کر چپکے سے گھونسلے سے چلا جاتا ہے، اور سیدھا بلبل کے گھونسلے کی طرف جاتا ہے۔ بلبل کے گھونسلے میں جا کر وہ چپکے سے بلبل کا انڈا اٹھا کر نیچے گرا دیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ جب جگو اپنے گھونسلے کی طرف جا رہا تھا تو اسے کبوتر دیکھ لیتا ہے۔ یہ کالو کا بیٹا اس سمے کہاں سے آ رہا ہے بھی اکیلا۔ یہ کالو اور گور بھی اپنے بیٹے پر ذرا غور نہیں کرتے، کیسے رات کے سمے اکیلا اٹھتا پھر رہا ہے۔ اور پھر ایسے ہی صبح ہو جاتی ہے۔ بلبل کی جب آنکھ کھلتی ہے تو اپنے انڈے کو نہ پا کر بہت پریشان ہو جاتی ہے، اور جب پیڑ کے نیچے دیکھتی ہے تو اپنا انڈا نیچے ٹوٹا دیکھ رونے لگ جاتی ہے۔ میرا انڈا کیسے ٹوٹ گیا؟ میرا انڈا کیسے ٹوٹ گیا؟ بلبل کی آواز سن کر باقی پکشی بھی اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ بلبل، آج رات نہ تو ہوا چلی ہے اور نہ ہی آندھی آئی ہے، پھر تمہارا انڈا نیچے کیسے گر گیا؟ اس بات کی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ رات کو جب میں سوئی تھی تو میرا انڈا گھونسلے میں بالکل ٹھیک پڑا تھا، لیکن جب صبح میری آنکھ کھلی تو میرا انڈا ٹوٹا پڑا تھا۔ میری تو کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے، پھر کسی نے کیوں میرا انڈا توڑا؟
हमारे जंगल में पहले तो कभी भी ऐसी हरकत नहीं हुई, अब ये कैसे हो गया? लेकिन मुझे पता है ये सब किसने किया है। कबूतर भैया जल्दी बताएं, मेरे साथ इतना जुल्म किसने किया है? ये सब जग्गू ने किया है। मैं रात को जाग रहा था तो वो बुलबुल के घर की तरफ से आ रहा था। ये गोरी भी किसी की नहीं सुनती। मैंने भी कई बार उसे कहा है कि जग्गू को थोड़ा समझाया करे। अब वो बड़ा हो गया है, लेकिन वो तो आगे से लड़ना ही शुरू कर देती है। हम सब मिलकर जाते हैं गोरी के घर और उसे बता कर आते हैं कि उसके बेटे ने कितना बड़ा गलत काम किया है। शायद फिर उस पर कुछ असर हो जाए। और वो सब गोरी कव्वी के घर की तरफ चले जाते हैं। आप सब यहाँ, सब ठीक तो है ना? ये आप अपने बेटे से पूछे कि इसने रात को मेरे घर आकर मेरा अंडा क्यों तोड़ा है। लेकिन जग्गू तो रात को हमारे साथ सोया हुआ था घोंसले में। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? हम इल्जाम नहीं लगा रहे गोरी, कबूतर ने खुद आधी रात को जग्गू को बुलबुल के घर की तरफ से आते देखा है। तुम तो चुप ही रहो, मेरे मुंह ज्यादा ना लगना। अगर मैं कहूँ कि मैंने तुम्हारे कुकू को बुलबुल के घोंसले की तरफ से आधी रात को आते देखा था तो फिर? गोरी ये तुम अच्छा नहीं कर रही अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालकर। देखना ये किसी दिन तुम्हारे लिए किसी बड़ी परेशानी का सबब बनेगा। हम सब ने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ आकर। अब अगर किसी पक्षी के घोंसले से अंडा टूटा या गायब हुआ तो कालू, हम सब पक्षी मिलकर तुम्हें इस जंगल से ही निकाल देंगे। ऐसे कहते हुए वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू, क्या तुम रात को घोंसले से बाहर गए थे? इससे पहले जग्गू कोई जवाब देता, गोरी जल्दी से बोल पड़ती है, खबरदार अगर तुमने उन पक्षियों की बातों में आकर मेरे बेटे को कुछ कहने की कोशिश की तो। और कालू कौवा फिर से खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ सब पक्षी आपस में सलाह करते हैं। ये गोरी तो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं आप सबको एक मशवरा दूं, अगर आप मेरी बात मानो तो। हाँ रानो, कहो क्या कहना चाहती हो? आज के बाद कोई भी पक्षी ना तो जग्गू को कुछ कहे, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। और हम सब अपने बच्चों को भी ये समझा देते हैं कि यहाँ पर जग्गू हो वहाँ से तुरंत चले आए, और ना ही हम में से कोई गोरी को कोई शिकायत लगाएगा। गोरी किसी दिन खुद ही पछताएगी, जैसे वो अपने बेटे की प्रशिक्षण कर रही है। रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। और फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सब पक्षी अपने अपने बच्चों को समझा देते हैं। अगले रोज जग्गू जिस भी छोटे पक्षी के पास जाता है उसे तंग करने के लिए वो वहाँ से तुरंत चला जाता है। जग्गू बहुत हैरान होता है कि इन सबको क्या हुआ है। आज तो जरा भी मजा नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? क्यों ना दूसरे जंगल जाऊं और वहां जाकर किसी पक्षी को तंग करके आऊं। और फिर ऐसे सोचकर जग्गू वहां से दूसरे जंगल की तरफ चला। जब वो दूसरे जंगल पहुंचता है तो उसे एक अंगूर की बेल पर छोटा सा उल्लू दिखाई देता है जो अंगूर खा रहा था। जग्गू तुरंत उसके पास चला जाता है। ओए छोटे उल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये अंगूर मेरे हैं। मैंने आपको पहले तो इस जंगल में नहीं देखा। आप झूठ बोल रहे हो। ये अंगूर हमारे जंगल के सब पक्षियों के हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने जबान चलाओ। ऐसे कहते ही जग्गू उस छोटे उल्लू के भी 2-4 चोंचे मार देता है। वो छोटा उल्लू वहाँ से रोता हुआ अपने मम्मा पापा के पास चला जाता है। चिंकू, क्या हुआ है तुम्हें? ये तुम्हें घायल किसने किया है? और वो छोटा उल्लू रोता हुआ सारी बात अपनी मम्मा पापा को बता देता है। उस कौवे की इतनी हिम्मत, हमारे इलाके में आकर बदमाशी दिखाए। वो पापा उल्लू अपने साथ और 2 उल्लुओं को लेकर जग्गू को पकड़ने चला जाता है। जग्गू अभी तक बैठा अंगूर खा रहा था। हाँ बे काले कौवे, कौन हो तुम और हमारे इलाके में आकर बदमाशी क्यों कर रहे हो? चलो तुम्हें जरा सबक तो सिखाएं। ऐसे कहकर वो उल्लू जग्गू को पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाम हो जाती है। कालू और गोरी भी अब परेशान हो गए थे कि जग्गू अभी तक घर क्यों नहीं आया। कालू, चले हम ढूंढने जाते हैं अपने जग्गू को, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। और फिर कालू और गोरी सारा जंगल फिरते हैं, लेकिन जग्गू कहीं से भी नहीं मिलता। अब रात हो चुकी थी।
मेरा जग्गू, किसी की नजर लग गई मेरे बेटे को। हर कोई मेरे बेटे के पीछे पड़ा रहता था। अब तो ये फजूल बातें करना बंद कर दो। पहले ही तुम्हारे बेजा लाड की वजह से वो इतना बिगड़ चुका है कि वो हमें ये भी बताना पसंद नहीं करता कि वो किधर जा रहा है। अब मैं सुबह दूसरे जंगल जाऊंगा, कहीं वहाँ ना चला गया हो। अगली सुबह कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे जंगल चले जाते हैं। वो सारे जंगल में फिरते हैं। फिर उन्हें एक पेड़ के साथ जग्गू उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है। पास में उल्लू भी बैठे हुए थे। वो दोनों तुरंत जग्गू के पास जाते हैं। मेरा जग्गू, तुम यहाँ कैसे? तो ये तुम्हारा बेटा है, इतना बिगड़ा हुआ। तुम दोनों भी ऐसे ही होंगे। अब ये हमारे कब्जे में है, तुम इसे लेकर नहीं जा सकते। इसने हमारे बच्चे को घायल किया है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। आप प्लीज इसे माफ कर दें, ये दोबारा फिर कभी इस जंगल में नहीं आएगा। यहाँ से जाएगा तो दोबारा आएगा। भाग जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। पापा, इन्होंने मुझे बहुत मारा है और मुझे कल से कुछ खाने को भी नहीं दिया। आप मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं फिर कभी भी किसी को तंग नहीं करूँगा। बड़े उल्लू जी, आप मेरे बेटे को छोड़ दें, मैं अपने बेटे के बिना मर जाऊंगी। गोरी उन उल्लुओं के सामने रोने धोने की खूब एक्टिंग करती है। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पहले कोई जामनी लाओ, फिर ही छोड़ेंगे इसे। और अब यहाँ से दफा हो जाओ, कहीं मैं अपना फैसला ना बदल लूं। कालू कौवा और गोरी कौवी तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों सीधे कबूतर की तरफ जाते हैं। कबूतर भैया, आप प्लीज हमारे साथ चलें। कहाँ? और फिर गोरी कबूतर को सारी बात बताती है। जब हम कहते थे तुम्हें कि अपने बेटे पर गौर करो, तब तो हम तुम्हें बुरे लगते थे। अब पता चला ना? ना भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा। और वो दोनों वहाँ से तोते के घर की तरफ चले जाते हैं और तोता भी उनके साथ जाने को इनकार कर देता है। अब किसके पास जाएं? रानो तो तुम्हें वैसे ही अच्छी नहीं लगती। लेकिन रानो हमारी मदद जरूर करेगी। कालू, जल्दी करो, हम रानो की तरफ जाते हैं, कहीं वो उल्लू मेरे जग्गू को मार ही ना दे। गोरी, तुम बहुत मतलबी हो। और फिर वो दोनों रानो चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। रानो चिड़िया उनकी बात मान लेती है और फिर वो तीनों दूसरे जंगल जाते हैं। रानो चिड़िया उन उल्लुओं को जामनी दे देती है और वो उल्लू जग्गू को छोड़ देते हैं। आज तो छोड़ रहे हैं, फिर अगर इस जंगल में नजर आए तो जान से मार देंगे। और वो जल्दी से वहाँ से वापस आ जाते हैं।